हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनएच बोर्ड का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3। इसमें जो हम करेंगे आज डायनामिक सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पृथ्वी का गतिशील धरातल। ये टॉपिक कई मायने में कई क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनएच बोर्ड में पढ़ते हो, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो या बिहार बोर्ड के बच्चे या किसी भी बोर्ड के बच्चे हो। अगर उनके सिलेबस में डायनामिक सरफेस ऑफ द अर्थ है तो इसका मतलब ये टॉपिक उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। और अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए भी रहेगा क्योंकि ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में समझने का मौका मिलेगा, प्लस डिस्प्ले भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा, तो ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। There is a most important topic arrive here are continentals of draft. There is a most important here are continental drafts according to the Alfred Wegener. There is entire to the landmarks of the globes was together about 280 million years ago. There is a most important here. It is a term to the Pangea, a supercontinent, and there is a the water bodies surrounding the Pangea is known as the Panthalassa. Panthalassa there is the most important from there 280 to 150 million years ago. The Pangea was broken to the longitudinals into the northern and southern parts as known as the Laurasia is a Nagaland. Nagaland is there as a Gondwaland. There is the most important especially here. The both of them drifted away to the between to the shallow sea as immersed by the feelings up their water from Panthasalas. It is known as the Thesia Sea. The latter on there is a Laurasias and the Gondwana land is a briefs as a funny drafted to form to the present day of distribution of land and water on the earth. They are showing this figure. Here the show the more important is air globes. There is the upper is the carboniferous is the most important here. There is the longitudinal 180 to the 180 there side, and there is the most important show here. The next diagram here is the cosines. There is the most important here. Longitudinal same, but there is the cosines is the difference here. The next there is the alter is the Pleistocene is the most important here. Show as a diagram. Evidence of draft is a beggar is give to the number of evidence in a support of the unification of the landmarks in the geologic past. They are such which is cannot be neglected even today. There is the most important first dear law is the evidence of draft or beginner is a jigsaw feat. Jigsaw weight is the most important law here, and coastal of South America is identical to the western coastal of Africa, which feet to be contained is a depth in the ocean. To be contained is extend a coastal area, and continental slabs has been to the modified by the oceans and the wave through the relations. So in this figure. In this figure, the show the most important here Greenland, Europe, and Northern America. And the next here, Africa and South America. There is a Wenger is a map of continental draft of fitting of their continent as a bordering to the Antarctica oceans. The next here is a geological similarity. There is the most important the mountain system of southern Antarctica is the coastal in South America and Africa, showing the similarity of the extensions in a both continent. And the next here is the coal and vegetation evidence. That is the most important here. The distribution of the coal and vegetation over South
America, Africa, India, and Australia prove that their weight together is a geologically past. Their classical is a glaciers is a deposit during to the Californias is a period over this is a landmarks is. They remember their each other which is the tell the story of togetherness and today and their lives are different is a climatical zone. Apart from above evidence put forward by the beginner and the other evidence is known as the latter, and also there is which support the idea of the continental draft. There is the most important. The next year, evidence from the paleomagnetism. There is the most important evidence from the paleomagnetism. And paleomagnetism is their study of the direction of pole through the edges. And the magnetical is a substitutable is a minerals and the like hematomatis and the parotatis magnetic etc. They get realized in the magnetic pole of the earth and recorded in the solidification of the magma during that time. And it is found that a periodic change have occurred and the pole have wandered which is not possible for the entire earth. Hence, it is the twist and the turn of the landlock and the not from the entire earth which has again explained that is the continent have shifted their positions. The next area sea floor is spreading. There is the most important sea floor spreading theory. The long there are mid Antarctic days is a magma come out at the sea bed and the get solidified. A new zone is formed and this is a process is a continuing sign millions of years. It is the leading of the deviations and the continental block. And the size of the Antarctica Ocean is increasing, which is a term as a sea floor spreading. It is a classical example of their shifting of continents. The explanation of the continent as a drop through sea floor as spreading and the study of the paleomagnetism is known as the commonly is a plate tectonics. There is tectonics is the most important here. A paleomagnetism also called there is a plate tectonic. There is the most important and here show this figure. In this figure is the most important the valley mountain here and continental crust and rise of magma and the upright. There is a second diagram also important here, the B. The B diagram is a show here is most important and C is also there is a continental shift and the mid-oceans rift and the ocean base and oceanic their crust and mantle. There is the most important diagram here. And this diagram is the stage is the continental rupture and they are opening up to the new basin. There is the most important diagram shown in this picture. यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है महाद्वीपीय विस्थापन। देखिए महाद्वीपीय विस्थापन तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि महाद्वीपीय जो विस्थापन हुआ है उसका क्या रीजंस है, क्या इसका विचारधारा है। तो कहते हैं बहुत साइंटिस्टों ने अपने जो है इस पर विचारधारा रखा है, लेकिन हम अल्फ्रेड वेनेगर के विषय में जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे जिन्होंने सारी जो है बातों को यहाँ पर विस्तार पूर्वक जो है बताने की कोशिश किया है। तो इसमें जो है वल्फ्रेडस वेगनर ने बहुत काफ़ी अच्छी बात बताई जो कि महाद्वीपीय विस्थापन के जो है सिद्ध करता है। अगर हम बात देखें जो है अल्फ्रेडस वेनेगर के अनुसार तो कहते हैं 28 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी का समस्त भूभाग एक साथ जुड़ा हुआ था और इसमें कोई दो राय नहीं है, यही बात सच्चाई है कि समस्त पृथ्वी जो था पहले के समय में जुड़ा हुआ था। ठीक है, इस सुविशाल महाद्वीप को उन्होंने पेंजिया नाम दिया था और इस अकेले महाद्वीप के चारों ओर एक विराट जो है महासागर था जिसका नाम जो है पैथलॉस था और 28 से 15 करोड़ वर्ष पूर्व यह अंशीय रूप से उत्तरी तथा दक्षिण भागों में टूट गया जिन्हें क्रमश लैरोसिया यानी अगरलैंड और जो है गेंडवालालैंड के रूप में जाना गया। दोनों एक दूसरे से जो है अलग हटते गए तथा इसके बीच जो है पेंथालॉस द्वारा पानी भरने का एक उथल समुद्र पैदा हो गया जिसे हम जो है टेथिलिस सागर के नाम से भी जाना गया। कहते हैं इसके बारे में जो है एलिसिया और गोडलैंड और वर्तमान में क्या हुआ कि ये जल के रूप में धारण कर लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर आप डायग्राम भी देख सकते हो तो इसमें ऊपरी कनवोफोरियस के बारे में दिखाया गया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। सारे पहले एक पार्ट थे
लेकिन समुद्र में क्या हुआ, कुछ उथल पुथल होने की वजह से ये लैंड जो थे टूट गए। और कहते हैं आज के समय भी लैंड टूट रहे हैं और जो है अलग होते चले जा रहे हैं। कई जगह पर साइंटिफिक रिसर्च हुआ है कि जो महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे उनमें काफ़ी जो है डिस्टेंस आ गया है। तो ये भी सच्चाई इन्होंने सही बात बताई थी कि हो सकता है कि सारे पहले पृथ्वी का भाग एक जैसा ही था, जितने भी लैंड थे सब एक साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, समय के साथ जैसे इसके विखंडन हुए, पानी का दबाव पड़ा, जिसकी वजह से वो सारे के सारे अलग हो गए। और ये डायग्राम भी बहुत हद तक जो है इस बात को सिद्ध भी कर सकता है। उसके पश्चात यहाँ पर आ गया न्यूनतम। देखिए इस बात में भी काफ़ी स्पष्ट दिखाने की कोशिश किया गया है कि न्यूनतम में जो है कैसे जो है पृथ्वी पहले एक साथ थी और इसका धीरे धीरे जो हुआ विखंडन हुआ, धीरे धीरे जो है ये अलग होता चला गया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बहुत काफ़ी डायग्राम जो है क्लियरिटी बता रही है। देखते हैं अगला डायग्राम क्या बताती है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा जो डायग्राम आया है ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं पूर्व अभिन्यूनतम के द्वारा जो है पेंजिया बनी। तो इसमें देखिए कैसे जो है महाद्वीप धीरे धीरे अलग होते चले गए और ये बेनेगर पर आधारित थी। और इन बेनेगर ने बहुत ही काफ़ी इस बात को स्पष्टता के साथ यहाँ पर कहने की और बताने की कोशिश किया, जो कि प्रूव कर दिया कि पहले महाद्वीप जो थे आपस में जुड़े हुए थे। यानी विस्थापन की अभिक्रिया जो बताई गई कई मानने में सही था। उसके और भी बातों को जो है हम आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला बात क्या बात है जो इसको प्रमाणित करता है कि पहले जो थे सारे लैंड एक साथ लगे हुए थे। इसी बात को यहाँ जाहिर करने के लिए विस्थापन के प्रमाण क्या मिले, तो इस बात को जो है अध्ययन हमें करना पड़ेगा। कहते हैं वेगनर ने जो है भूभागीय भूतकाल में जो है भूभाग के एक होने का पक्ष में कई प्रमाण दिए कि सारे भूभाग जो थे पहले एक थे, और इसके विषय में बहुत से प्रमाण दिए। ये प्रमाण ऐसे जिन्हें आज भी नकारा नहीं जा सकता। तो इसमें कोई दो राय नहीं। कहते साइंटिस्टों ने बहुत जो है इसमें गहराई से रिसर्च किया कि पहले पृथ्वी जो थी हर एक पार्ट एक साथ जुड़ी हुई थी, और यही बात जो है वेगनर ने साफ करने की कोशिश किया। और इन्होंने सबसे पहले जो थ्योरी दिया वो दिया जिगसॉ फिट का। यानी जिगसॉ फिट के जो है अंतराल में क्या हुआ कि दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट अफ्रीका के पश्चिमी तट का सामान्य है, जो समुद्री में कुछ गहराई तक जाकर इससे अनुरूप हो जाता है, और कुछ सीमा तक जो है तटीय क्षेत्र और महासागरीय जो है निम्नगम तट समुद्री लहरों का यह बदल दिए गए। तो आपने देखा होगा कई चीज़ों की जो है प्राकृतिक भौगोलिक स्थिति एक जैसा ही होता है, और ये कई मानने में ज़रूरी भी है। तो हो सकता है ये सारे के सारे जो थे पहले एक थे, और ये एक होने के पक्ष में जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल जिगसॉ फिट का जो है थ्योरी है। यहाँ पर जिगसॉ फिट के थ्योरी के अंतर्गत एक डायग्राम आया है जिसमें आप देख सकते हो कि ग्रीनलैंड है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है। तो ये सारे एक साथ ही जुड़े हुए थे, लेकिन धीरे धीरे किसी कारणवश जो है पानी के जो है अलग होते गए। आपने अगर देखा होगा कि मान लीजिए कोई बर्फ़ का क्षेत्र होता है, तो जहाँ से बर्फ़ जो है टूट जाता है तो वो जो है बर्फ़ अलग हो जाता है। इसी थ्योरी पे जो है ये बात साबित होता है कि पहले पृथ्वी के सभी पार्ट जो थे एक साथ थे। कहते हैं पहले कई साल पहले जो थे यहाँ पर सभी जीव जंतु रहते थे और एक साथ ही रहते थे। कई जीव जंतु जो है दूसरे क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, तो इसका अर्थ है कि पहले ये सारे एक ही थे। तो ये सारी बातें प्रमाणित करने के लिए काफ़ी है, और ये बात और भी जाहिर कर देता है कि अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका सब एक साथ थी। तो ये थ्योरी जो थी हमारा महाद्वीपीय विस्थापन का जो है वेगनर का जो है मानचित्र अंटार्कटिका सागर के सीमावर्ती महाद्वीपों के एक दूसरे के अनुरूप होने को जो है दर्शाया गया था, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था और बहुत ज़रूरी भी था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है भूगर्भीय समानताएं। देखिए भूगर्भीय समानताएं क्या होती है। कहते हैं ये एविडेंस के रूप में देखा जा सकता है कि दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका में जो है दक्षिणी अंटार्कटिका तट के पर्वत तंत्रों के दोनों जो है महाद्वीपों में विस्तार की जो है समानताएं देखी गई, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और इस बात को जाहिर करने के लिए जो था भूगर्भीय समानताएं बहुत काफ़ी अच्छा साबित हुआ, प्रमाणित साबित हुआ। और इसमें दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के बीच अंटार्कटिका तट के जो तंत्र थे वो दोनों के लिए विस्तार की समानताओं को दर्शाने के लिए ये पर्याप्त था। यानी भूगर्भीय जो थी अत्यंत महत्वपूर्ण थी, जिसके बारे में हम जाने हैं। उसके बाद कहते हैं कोयला और वनस्पति संबंधी प्रमाण। देखिए कोयला और वनस्पति संबंधी प्रमाण भी इस बात को है काफ़ी जाहिर कर देता है। कहते दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया में कोयला और वनस्पति का वितरण यह सिद्ध करता है कि भूवैज्ञानिक काल में ये एक साथ जुड़े हुए थे, और इस जो है भूभागों पर जो है कार्बोनिफोरस काल में उच्च स्तरीय जो हिमनदीय निक्षेपण एक दूसरे से मेल खाते थे, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि एक समय
एक साथ थे, आज के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में भी है। यानी ये सारी बातें जो है प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है कि पहले हिम नदियाँ निश्चित एक दूसरे से मेल खाते हैं। कई क्षेत्र की जो वायु, आप देखिएगा कि वहाँ का टेम्परेचर, वायु दाब, सब के सब कई मायने में दूसरे क्षेत्र से काफ़ी मिल रहे हैं। यानी हो सकता है कि ये जो भाग थे पहले एक साथ जुड़े हुए थे, लेकिन समय के कारण ये जो थे अलग हो गए। तो इस प्रमाण देने के लिए काफ़ी पर्याप्त थ्योरी थी। उसके पश्चात दिया गया था पूरा चुंबकत्व के प्रमाण, यानी पूरा चुंबकत्व के प्रमाण के आधार पे ये कहा जा सकता है कि पूरा चुंबकत्व विभिन्न युगों में ध्रुव की दिशा का अध्ययन है। यानी हम ध्रुव की दिशा जो है अध्ययन जो है पूरा चुंबकत्व के कारण ही करते थे, यानी मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही जो है हमें इस पता चलता था कि जो है दिशा का कैसे है। यानी चुंबकीय से प्रभावित होने वाले खनिज जैसे हेमोटाइट्स, पेरिडोटाइट, मैग्नेटाइट आदि थे, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव की सीध में होते हैं और उस समय मैग्मा और जो है धनी भवन में दर्ज हो जाते हैं। यह पता चला है कि इसमें समय समय पर परिवर्तन हुआ है और जो है ध्रुवों की स्थिति बदलती रही है, किंतु यह परिवर्तन संपूर्ण पृथ्वी के लिए संभव नहीं था। अंततः यह भूखंडों में परिवर्तन है, न कि संपूर्ण पृथ्वी में, जो कि सिद्ध करता है कि महाद्वीपीय अपनी स्थिति बदलते रहते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। कहते हैं ये सारी बातें प्रमाणित करती है कि पृथ्वी पहले एक थी। अगर हम अगली पॉइंट की बात करें तो अगले प्रमाण के रूप में यही है कि समुद्री अर्धस्थल का वितरण। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी थी। इसमें मध्य अंटार्कटिका कटक के सहारे मैग्मा समुद्र की सतह पर आकर ठोस हो जाता है। यानी मैग्मा जो होता है यहाँ पर आकर काफ़ी ठोस हो जाता है और इससे एक नए क्षेत्र का निर्माण होता है और यह प्रक्रिया लाखों वर्ष से चल रही है। यह महाद्वीपीय खंडों का जो है विचलन कर रहा है, जिससे जो है अंटार्कटिका सागर का आकार बढ़ रहा है और इसको ही समुद्री अर्धस्थल का ही जो है वितरण कहते हैं। यह महाद्वीपों के विस्थापन का एक अनूठा उदाहरण है। समुद्री अर्धस्थल के जो है विस्तारण और पुराने चुंबकत्व के अध्ययन द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन के स्पष्टीकरण को ही सामान्य रूप से जो है प्लेट वितरणकारी के रूप में माना जा सकता है, कि जो कि बहुत ज़रूरी था। यानी जो है यहाँ समुद्री अर्धस्थल का वितरण काफ़ी अनूठी थी और काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल था। इसी को हम डायग्रामेटिक समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि डायग्रामेटिक में जो है मैग्मा का उत्थान दिखाया जा रहा है, उत्थान और महाद्वीपीय भूपट्टी दिखाया जा रहा है और दरार घाटी, खंड, पर्वत, इस सारी चीज़ें जो है विस्तार रूप में समझने से इस बात को काफ़ी क्लैरिटी जो है हमें मिलती है। यहाँ पर दिखाया गया कि महाद्वीपीय कगार और मध्य महासागरीय दरार और महासागरीय आधार भी इस चीज़ को जो है काफ़ी प्रेजेंट कर रहा है। महासागरीय भूपट्टी, मैदान, ये सारी बातों को यहाँ दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि पृथ्वी पहले एक जैसे थे। लेकिन देख सकते हो कि हर एक डायग्राम में कुछ बदलाव आपको देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है इसका भी कारण जो है पृथ्वी अलग हुई हो। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने को सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।